Hey everyone, welcome back to another video. Let's see what do we have in store today. Let's go to my browser and let's see. Today, okay, let me refresh. Okay, wait for it to load. Okay, today we have got an easy level problem, 68% acceptance. Fibonacci. Interesting. So Fibonacci is pretty straightforward actually. Let's see. Is it the regular Fibonacci or do they have with a twist or something? Let's see. Okay, the Fibonacci number is commonly denoted as f of n from a Fibonacci sequence such that each number is sum of two preceding number. That is this. Given n, calculate f of n. Oh, that's pretty simple. That's pretty simple. Maybe that's why this is an easy level question. And it's a super common question to ask. It's a super common question in the interviews. Constraints, we just have O of n, O to 30. Even simple. The maximum the n can take is 30. So we don't have to worry about recursion and memoization. Although since it's an easy level question, I will show you both of these approaches. But for small numbers such as 30 is super small. Like literally for 30, you can compute the Fibonacci sequence by your own and work with it. So I think for 30, the loop approach would be better. Anyway, let me take you to my whiteboard and I'll explain to you what the sequence is. So a Fibonacci sequence starts from 0. Some interviewers might start it from 1 as well. So the first two digits are defined here as 0 and 1. Some cases, it might also be 1, 1. So you can clarify with the interviewer, like in this case, the lead code team has written that the starting are 0 and 1. They will give you this starting. The next element is computed as the sum of previous two. So in this case, 0 plus 1, that will be 1. Next element, 1 plus 1, that will be 2. Next element, 2 plus 1, that will be 3. Next element, 2 plus 3, that will be 5. 3 plus 5, that will be 8. 5 plus 8, that will be 13. So on, so forth, we keep on computing. Now this is fib of 1. No, wait, this will be fib of 0. I can start with fib of 0. Then this will be fib of 1, fib of 2, fib of 3, fib of 4, fib of 5, 6, 7, 8. Your task is to compute fib of n. Write a function, ऐसा function लिखो which will compute the fib of n. n देंगे, output देना है आपको based on this logic. तो इसमें तो एक हम लोग सिंपल सा लूप चला सकते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है, लूप चला दो. तो इसमें करना क्या होगा, हम लोग के पास एक सम ले लेंगे which is basically a plus b. इनिशियल केस में मेरा a होगा 0, b होगा 1. तो इनिशियल केस में मेरा क्या बना, a is equal to 0, b is equal to 1, sum is equal to a plus b, in this case 1. अब मुझे a और b को एक एक शिफ्ट करा लेंगे, a को ये ले देंगे, b को ये दे देंगे. So that means I will write a is equal to b and b is equal to sum. खत्म. और क्या करना है, at the end of my loop I will simply return the sum, return b. b और sum वैसे एक ही बात है because b is equal to sum. लास्ट में तो यही रहने वाला है, but चलो b रिटर्न कर देंगे just for goodness sake. और खत्म है. इसके बाद प्रोग्राम कुछ है ही नहीं. That's all. Let's try to run this. And I think because ये जो solution है, ये जो problem है, ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटे स्केल पे है. ये प्रॉब्लम में मैक्सिमम कॉन्स्टेंट आपका है कि n कैन बी मैक्सिमम 30. बिकॉज ये प्रॉब्लम इतने छोटे स्केल पे है, आई थिंक इसमें इटरेटिव सॉल्यूशन बेटर है. इटरेटिव मतलब लूप, ठीक है. रिस्पॉन्सिव कह रहा, क्या बोलते हैं इसको, रिकर्सिव. ध्यान से निकल गया वर्ड. रिकर्सिव सॉल्यूशन मतलब जब फंक्शन खुद को कॉल करे. तो फिबोनाची के लिए बड़े जब नंबर्स आते हैं आपके पास, तो रिकर्सिव सॉल्यूशन विद मेमोराइजेशन बहुत सही रहता है. बट यहाँ पे एक इटरेटिव सॉल्यूशन भी बेटर है. रिकर्सिव सॉल्यूशन पता है 4 लाइन का कोड है. रिकर्सिव सॉल्यूशन में को बस एज केसेस लिखने हो, तो रिकर्सिवली कुछ भी फंक्शन जब कॉल करते हो एज केसेस लिखते हो और उसमें आप लगा देते हो अपने फंक्शन रिकर्सिव. तो इस प्रॉब्लम के लिए अगर मैं रिकर्सिव भी लिखता, सपोज अगर मेरी प्रॉब्लम यहाँ इसको नीचे लिख रहा था, हाँ, सपोज अगर मेरी प्रॉब्लम होती कि फिब n कंप्यूट करना है
सबसे पहले तो मेरे एज केसेस हो जाते हैं कि इफ n इज लेस देन 2 तो रिटर्न n। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, सिंपल सा रीजन है, n इज लेस देन 2 मतलब n का वैल्यू होगा 0,1, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और क्वेश्चन में दिया ही है मेरी सीरीज 0 और 1 से स्टार्ट होती है, तो सीधा सीधा रिटर्न है। और फिर नीचे लास्ट में रिटर्न fib ऑफ n-1 प्लस fib ऑफ n-2। एक करंट n किस चीज से बना है, n-1 और n-2 के सम से बना है। खत्म, 5 लाइन में कोड खत्म है ये पूरा, लेजिट और कुछ है ही नहीं। इसको लिखते हैं, इसको जल्दी से कोड करते हैं, देखते हैं। तो मेरा var fib is equal to function of n। मैं लिखता हूं if n is less than 2 return n, और फिर नीचे लिखता हूं return fib of n-1 plus fib of n-2, fib of n-2। खाता में ये क्वेश्चन लाइक लेजिट। मैं इसको रन करके देखता हूँ, टेस्ट केसेस पहले चेक करते हैं हम लोग। ये वाला टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया, एग्जाम्पल वाले जो तीनों केसेस थे उसको ऐड करा लेते हैं। अभी एग्जाम्पल टेस्ट केसेस रन कर लेते हैं जल्दी से। लेट्स रन देम, वेट फॉर इट टू एग्जीक्यूट, वेट फॉर इट। हो गया। इसको सबमिट करते हैं, इसको सबमिट करते हैं एंड डन, एक्सेप्टेड हो गया ये क्वेश्चन। कितना लाइन लगा इसको जरा बंद करें। हार्डली, अगर मैं एंटर वेंटर हटा दूं, इसको मैं गिन के 2 लाइन के अंदर कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा एंटर हटा दूं और इसको ऐसे लिख दूं, 2 लाइन का कोड है ये, खत्म। फंक्शन ऑब्वियसली हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बस 2 लाइन का कोड एक्सेप्टेड है। बट ये रिकर्सिव अप्रोच है। अब ये इतना आसान टास्क है, आई विल शो यू अदर अप्रोचेस आल्सो। बड़े नंबर्स में रिकर्सिव में प्रॉब्लम आती है ये, और इसकी प्रॉब्लम बहुत आसान सी है। मैं ये समझाता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। सपोज करो, वापस व्हाइट बोर्ड पे आता है जरा। सपोज करो मेरे पास आया है कैलकुलेट करने को fib ऑफ 7, है ना। fib ऑफ 7 आ ही सकता है, तो छोटा सा नंबर है, सो लेट मी क्विकली ड्रैग इट और यहाँ पे लिखते हैं। सपोज करो मेरे को कैलकुलेट करने को आया है fib ऑफ 7। अब ये बड़ा नंबर नहीं है, बट ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। fib ऑफ 7 कंप्यूट करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, fib ऑफ 6 चाहिए प्लस fib ऑफ 5 चाहिए। अब 6 कंप्यूट करने के लिए क्या चाहिए, fib ऑफ 5 प्लस fib ऑफ 4। 5 के लिए हमें क्या चाहिए, fib ऑफ 4 प्लस fib ऑफ 3। 5 के लिए हमें और क्या चाहिए, 5 कंप्यूट करने के लिए हमें वापस फिर से, अब यहाँ पे हम अलग fib ऑफ 5 कंप्यूट कर रहे हैं, ये ध्यान दो। ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे एक बार कर चुके हैं, बट यहाँ पे फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा fib ऑफ 5 व्हिच इज fib ऑफ 4 प्लस fib ऑफ 3। यहाँ पे fib ऑफ 4 चाहिए, fib ऑफ 4 इज fib ऑफ 3 प्लस fib ऑफ 2। अब यहाँ पे ऑलरेडी fib ऑफ 4 कर चुके हैं, बट यहाँ दोबारा करना पड़ेगा fib ऑफ 4 which will be fib ऑफ 3 प्लस fib ऑफ 2। सेम थिंग यहाँ दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये सेम चीज fib ऑफ 4 3 बार कैलकुलेट हो रहा है, fib ऑफ 5 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, और ये तो 7 पे है जब इतना कम कैलकुलेशंस हो रही है। अगर यहीं पे मैं fib ऑफ 100 दे दूं, कितने सारे बार अननेसेसरी रिपीटेड कैलकुलेशंस होंगी। अब यही रिपीटेड कैलकुलेशंस हम बचा ले जाते हैं। इसमें ट्रेड ऑफ ये है, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कम हो गया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। कैसे बचाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इसको हम एक सेट में सेव कर देंगे। इसको हम लोग एक सेट में सेव कर देंगे कि अगर ये एलिमेंट मेरे पास ऑलरेडी है, सेट नहीं मैप हो गई है, बिकॉज मैप इज अ की वैल्यू पेयर, राइट। तो अगर मैं बोलूंगा मेरा fib ऑफ 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसका वैल्यू कुछ भी हो, सपोज करो वैसे क्या होगा, 4 होगा fib ऑफ 3 प्लस fib ऑफ 2, मुझे भी याद नहीं है। fib ऑफ 2 होता है, fib ऑफ 2 होता है 1, fib ऑफ 3 होता है 2, 2 प्लस 3 1, 3 होगा fib ऑफ 4। हम लोग सीरीज देख लेते हैं 0, 1, 1, 2, 3। तो 0, 1, 2, 3, 4, ये है fib ऑफ 4 3। ये हम लोग एक मैप में सेव कर लेंगे ये वैल्यू। तो ऐसे ही जितने फिब्स आते जाएंगे सारे n के लिए हम लोग सेव कर लेंगे। तो हर चीज एक ही बार कंप्यूट करनी पड़ी आपको, हर एक चीज एक बार कंप्यूट करनी पड़ी। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है क्योंकि आपको वो सारे नंबर सेव करने हैं कहीं पे, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है कि आपको हर बार fib ऑफ 4 नहीं कैलकुलेट करना, हर बार fib ऑफ 3 नहीं कैलकुलेट करना। जैसे यहाँ पे देखो fib ऑफ 3 मैं कितनी बार कैलकुलेट कर रहा हूँ, चलो चेंज करते हैं जरा। ये देखो fib ऑफ 3 यहाँ पे एक बार कैलकुलेट हुआ,
यहाँ पे एक बार कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे एक बार कैलकुलेट हुआ, इसको जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो यहाँ पे एक बार कैलकुलेट होगा, फिब ऑफ 3 यहाँ पे एक बार कैलकुलेट हुआ, 1 2 3 4 5 बार फिब ऑफ 3 कैलकुलेट हुआ, और हर बार स्टेप्स तो लगेंगे, उसको कैलकुलेशन में स्टेप्स लगेंगे, टाइम लगेगा। अब यही चीज अगर मैं यहाँ पे सेव कर लूँ कि फिब ऑफ 3 का वैल्यू जो है मेरे पास 2 है ना, मतलब 3 जो है मेरे पास इसका वैल्यू 2 है, तो मैं सीधे सीधे मेमोरी से रेफर ले सकता हूँ। मेरे को हर बार फिब ऑफ 3 कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिब ऑफ 3 कैलकुलेट करने के लिए मुझे फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1 चाहिए, और फिब ऑफ 2 के लिए मुझे फिर से फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 0 चाहिए। तो समझ रहे हो कितना ज्यादा स्केल पे चीजें कैलकुलेट करनी पड़ रही है। इसको हम लोग बचा ले जाते हैं बाय यूजिंग अ सेट या अ हैश मैप, और इसी छोटी सी चीज को मेमोराइजेशन कहते हैं। इतना बड़ा वर्ड ले लिया, फैंसी सा, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, मेमोराइजेशन। आपने उसको एक वेरिएबल में सेव किया और उसी वेरिएबल से एक्सेस किया, खत्म, और कुछ नहीं। चलो लिख लेते हैं इसको, वापस आते हैं यहाँ और जरा इसको बंद करते हैं थोड़ी देर, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसको हम लोग स्टेट मान लेते हैं और लेट सेट मान लेते हैं। चलो सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, मैं बोलता हूँ सिंपल बात बोलता हूँ, इफ सेट ऑफ n अगर अनडिफाइंड नहीं है, मतलब मेरे पास सेट ऑलरेडी हो रखा है वो वेरिएबल में, हाँ, तो मैं रिटर्न मार दूंगा रिटर्न सेट ऑफ n, खत्म। और यहाँ पे हर बार रिटर्न करने से पहले उसको सेव कर लेंगे, सो दैट मींस सेट ऑफ n इज इक्वल टू n, और नीचे सम बना लेंगे बिकॉज डायरेक्टली तो कर नहीं सकते इसको, तो लेट सम इज इक्वल टू fib of n minus 1 plus fib of n minus 2, और इसको सेट कर देंगे, तो सेट ऑफ n इज इक्वल टू सम, सेट कर दिया आपने और फिर रिटर्न करा दो भैया, रिटर्न तो करना ही होगा है ना, तो ये जो यहाँ से ऊपर लेके गए यहीं पे इसको रिटर्न करा देंगे। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रिटर्निंग, अब आपने एक छोटा सा वेरिएबल ले लिया और ये कंडीशन लगा दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये कंडीशन कहती है कि अगर मेरे सेट में ऑलरेडी वो एलिमेंट है, बिकॉज वो अनडिफाइंड नहीं है, तो भैया उसको यूज कर लेगा, ठीक है। आई एम सेइंग सेट बट आई मीन अ मैप, मैं हर बार सेट मैप बोल देता हूँ, बट यहाँ पे मैप होगा। चला के देख लो, रन कोड करते हैं इसको, सिंपल सा वही टेस्ट केस अपने तो ऑलरेडी हो रखे हैं, देखते हैं इसको हो गया, सारे टेस्ट केसेस पास हैं। अब इसका टाइम और स्पेस देखना, हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहता है 135 मिलीसेकंड्स, रन्स फास्टर देन 19%। अब इसको जरा सबमिट मारते हैं मेमोराइजेशन के साथ, ठीक है। अब इसका जरा हम लोग रन टाइम देखेंगे कितना जाता है, तो 135 था पिछले वाले का, इसका हो गया सीधा आधा, 54 मिलीसेकंड्स, रन फास्टर देन 98.96% जावास्क्रिप्ट सॉल्यूशंस, देख रहे हो, इतना जरा सा हो गया। तो ये फायदा है मेमोराइजेशन के साथ, आपकी स्पीड बहुत तेज बढ़ जाती है, तो उसका छोटा सा ट्रेड ऑफ है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। यहाँ पे इतना स्पेस लिया नहीं उसने, बिकॉज आपके 30 ही तो एलिमेंट्स थे, जरा से थे, तो उस वजह से चल गया। अच्छा, तो ये था रिकर्सिव सॉल्यूशन, ये था रिकर्सिव विद मेमोराइजेशन सॉल्यूशन। अब जो हम लोग का ओल्ड स्कूल अप्रोच बचा था, जो लूप वाला बचा था, वो भी कर लेते हैं, जब कर ही रहे हैं तो लगेगा तो उसको भी कर ही लेते हैं। सो आई विल सिंपली गो बैक एंड ये जरा सा हटा देते हैं। तो रिकर्सिव हो गया, रिकर्सिव विद मेमो हो गया, एक छोटा सा सोल्यूशन था जो हम लोगों ने ए और बी इनिशियली अज्यूम किया था। अगर ध्यान नहीं हो तो एक बार व्हाइट बोर्ड में वापस आ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको अज्यूम कर रखा था, है ना, ये वाला अप्रोच अपना कहाँ चला गया, ये वाला, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए को बी में बना देंगे और बी को सम बना देंगे, बस खत्म। ये छोटा सा कोड लिखना है। वापस आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड से कोड में आते हैं वापस। अज्यूम करते हैं, देखो सबसे पहले ए इज इक्वल टू 0 और लेट बी इज इक्वल टू 1, ये तो पता है अपने को, है ना, ए 0 है और बी 1 है, ये तो अपने को पता रखा है ना। और इसके बाद फॉर लूप लगाना है। अच्छा, पहले तो ये लगा लेते हैं इफ n इज इक्वल टू 0, अगर n मेरा 0 है तो रिटर्न मारो a, है ना, बिकॉज रिटर्न 0 करना, या फिर वही लिख लेते हैं, चलो इफ n इज लेस देन 2 रिटर्न n। फॉर लूप फॉर लेट i इज इक्वल टू 2। अब देखो 0 और 1 का केस तो हम लोग ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं, है ना, तो 0 और 1 से नहीं, अब 2 से लूप स्टार्ट करेंगे अपना, और वही चलाएंगे i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। 2 लाइन 3 लाइन यहाँ पे लिखनी है, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, वेरिएबल शिफ्ट करा लेंगे, b
a इज इक्वल टू बी, ए को पहले b सेव कर देंगे और b को फिर बाद में सम सेव कर देंगे। ये कर दिया, इसके बाद कुछ नहीं, टर्न b। ये जरा सा कोड है, ये इटरेटिव अप्रोच है। इटरेटिव मतलब लूप के साथ लगा रहे हैं हम लोग ये अप्रोच। रन कराएं इसको, चेक कर लेंगे भैया चलता है कि नहीं, है ना। टेस्ट केसेस पहले चेक करेंगे फिर सबमिट करेंगे। तो यहाँ पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, वेट फॉर इट टू एग्जीक्यूट। हो गया, बढ़िया प्यारा। सबमिट मार लेते हैं इसको। चलो ये अप्रोच भी देख लेता है ना। ये भी चला, बढ़िया, रन्स फास्टर देन 81%। तो ये थोड़ा सा स्लो हो गया मेरे मेमोराइजेशन अप्रोच के सामने, बट चलो ठीक है यार, ठीक। दोनों तीनों केसेस है, तो चलो इस केस में भी रिकर्सिव की ही जीत हुई। मान लिया 30 नंबर बढ़ा, कोई नहीं, बढ़िया। सो या हम लोगों ने तीनों अप्रोचेस देख लिए एंड या सो दैट्स इट एवरीवन। आज का क्वेश्चन काफी आसान था, इट वाज एन इजी लेवल क्वेश्चन और हम लोगों ने वो कर लिया। हम लोगों ने 3 अलग अलग अप्रोच देखे। सबसे पहला नॉर्मल रिकर्शन, दूसरा रिकर्शन विद मेमोराइजेशन, ठीक है, ये देख लिया। और तीसरा जो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है वो तो सिंपल लूपिंग का है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड you know, like, subscribe, share and comment and see you in the next one. Bye bye.